My name is Neha Dikshit and I'm an independent journalist, and I'm here for an event to release political prisoners. And in this event, number of family members and friends of the people who are currently in jail and who are political prisoners will be speaking. And as we speak, 14 journalists are under arrest and are in various jails. And so I just want to say that the criminalization of any kind of work that involves being critical of the establishment is something that is not healthy for a democracy. And in India, for the last 8 years, we have been seeing that number of law and order related cases are being filed against people who speak up, and that really needs to stop. I think the problem why people don't think this is a serious issue is because there has been a normalization of actually arresting and people putting people behind bars who speak up, and people think that will not happen to us. But the way things are going, even for, like, I can give an example of Pawan Jaiswal, who a journalist in Mirzapur, who had just reported about how children were being given salt and roti for midday meal, and even he was arrested. So for something as basic as that, people are being arrested, put behind bars. So it's not that this kind of normalization and institutionalization of putting behind people behind bars is only reserved for the academia or for journalists or for activists. It will happen to everybody, like we are seeing, whether each time you come out and say that the prices are high. Each time we saw this in Agnipath protests, when people were protesting for employment, people were being penalized, and this is only going to grow. So we have to stop thinking that it's not going to happen to us and pay attention to the others. I think we are so desensitized that a lot of people are happy when people are arrested and put behind bars, and that is something that's very dangerous, because if you're actually celebrating violence and penalization of people for doing their jobs, it's really a dangerous situation and times to live in. आज खालिद और खालिद जैसे तमाम लोग जो सिर्फ और सिर्फ अमन पसंद हैं, उनको आतंकवादी, देशद्रोही और ना जाने ऐसे कितने ही नामों से बुला के उनके ऊपर इस तरीके के टेरर एक्ट लगा के उनको जेलों में डाला गया है, बिना ये सोचे कि इतने वक्त में उसके घर का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। कितने ही युवा इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, हमारे देश का फ्यूचर है। कोर्ट में ऐसे हंसते हुए स्माइल करते हुए दिखते हैं, उनका जोश कहीं से कहीं कम नहीं है, पर फिर भी बहुत सारी चीजों में तकलीफें होती हैं। सबको अपनों से दूर होने का दर्द है, हम सभी को। तो इतना हम एक एक चीज के लिए इतना दिमागी मेंटली हैरस होते हैं हम हर चीज से। सुबह उठते हैं तो इसी उम्मीद से उठते हैं कि आज काश वो दिन हो कि जब खालिद आ जाए, या कोई भी जिसकी भी बेल लगी हुई है कोई भी निकल के आए, चाहे वो शर्जिल है, उमर है, गुलफिशा है, अतर है, शादाब है, मीरान है। हमारी सिर्फ यही दुआ रहती है हर वक्त, हर रोज इसी में कि कोई भी हो पर वो सब निकल के आए। इसी उम्मीद से हमारी ये लड़ाई जारी है, और सिर्फ बेल मिलने तक ये लड़ाई जारी नहीं है। ये मैं यहाँ से भी कह रही हूँ और हर जगह से कह रही हूँ, जब तक हम सभी लोग बाइज्जत रिहा नहीं होते और यूएपीए हमारे ऊपर से हटा दिया नहीं जाता और इस एक्ट को सिरे से खारिज नहीं कर दिया जाता कि बेगुनाहों पर इसका यूज ना किया जाए, तब तक हमारी फाइट जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। जब यूएपीए सदन में लाया गया था तो मैं उस सदन में था, और हम सब लोगों ने जो डर और जो आशंकाएं व्यक्त की थी, I think we stand vindicated today. When you look at these images, they tell you what was and what is horrifyingly wrong with UAPA. You can be caught carrying a pamphlet which just has a title, The Prophet. Maybe it's a poem by Khalil Gibran, but who cares? You carry Communist Manifesto, the red color itself is enough for you to be behind the bars. And we have examples galore. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो नरगिस जी ने कहा, ना पिक अप फ्रॉम देयर, बेल हालात ऐसे हो गए हैं ना, एक इंसान को एक केस में बेल होती है और हम उम्मीद से देखने लगते हैं अच्छा आज वो बाहर आ जाएगा।
अचानक एक छोटी सी खबर देखते हैं कि सिर्फ ये एक मामले में बेल मिली है, बाकी मामले उसी प्रकार पड़े हुए हैं। लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में भी, सड़क में भी। लेकिन आजादी का 75वां वर्ष इस देश का सबसे डरावना वर्ष रहा है। हालांकि मैं डर की हिरार्की नहीं बता रहा हूं। वी आर ट्रूली अ रिपब्लिक ऑफ फियर नाउ, वेयर द रूलिंग गवर्नमेंट हैज मेड इट श्योर दैट इफ यू डोंट फॉल इन लाइन बाय इवनिंग यू मे नॉट सी टुमारो मॉर्निंग। अभी तक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कुछ प्रिविलेजेस की वजह से बचे पड़े हैं, लेकिन हाल में भी जो हमने चीजें देखी हैं सदन के अंदर, शायद वो बहुत दूर नहीं है जब ये मुश्किल होगा कि आप कब तक महफूज हैं, कब तक सुरक्षित हैं। ये मैं फिर से कहूं, ये सारी जो तस्वीरें हैं ये हमारी मेमोरी की ऐसी तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों को हमें बार बार उन्होंने हमें झकझोरा। इन्हीं तस्वीरों में लगभग सबके साथ किसी न किसी प्रकार का समय बिताया। कभी किसी के साथ शाम में बैठे हैं, कभी बात की है। तमाम लोग, खालिद सैफी हो, ओमर हो, मीरान हो, शर्जील हो, ये तमाम लोग ये आज कारागार में इसलिए हैं कि उन्होंने वो रास्ता चुना जो बहुतों के लिए मुश्किल है। It is time to understand that we are now going through an undeclared emergency. The government is doing as they want, as they wish. Every institution is in their hand and they are doing to us whatever they want, and we are not putting up a solid resistance, and they will continue to do this. उनके साथ जो गुजर रहा है हम सुनते हैं, पर इनका जो डेली संघर्ष है जस्टिस के लिए, उनके परिवार वाले के लिए, हम उतना नहीं जुड़ रहे हैं जितना हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो हम सब के लिए लड़ रहे थे, सब लोग के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपने हौसले तोड़ें। और कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कभी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, बीच में खालिद की भी तबीयत कई बार ख़राब हुई है, तो कभी हमारे हौसले डगमगा जाते हैं। पर फिर एक बार बच्चों को देखते हैं कि नहीं, ये फ़ाइट बहुत लंबी है, जीतना है इसको, क्योंकि दिल के अंदर और जो सब लोगों का सपोर्ट है उन सबको देख कर ऐसा लगता है कि ना कि हमें उम्मीद है कि हम ये फ़ाइट जीतेंगे। और इसी उम्मीद के साथ में देर हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो झेलनी पड़ती हैं हम लोगों को, बच्चों को झेलनी पड़ रही है, मेंटली ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है मेरे बच्चों को, तीनों बच्चे, और बहुत कम एज से। छोटी बेटी जब खालिद की अरेस्टिंग हुई थी 6 साल की थी, अभी वो 9 साल की हो गई। तो 3 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी बच्चे के लिए कि अपने अब्बू से, अपने फादर से दूर रहना, जिसके बिना वो सो नहीं पाती थी। तो वो तक भी इस उम्मीद में है कि बहुत जल्दी अब्बू आएंगे। हर एक बर्थडे पे, हर एक ईद पे उसको ये उम्मीद होती है कि उसके अब्बू उसके पास आएंगे। वो कोर्ट में भी कई बार मिलने जाती है। तो खालिद को हमें देख के हौसला मिलता है और हमें उन्हें देख के हौसला मिलता है। बस इसी चीज़ से हम लोग फ़ाइट कर रहे हैं, एक दूसरे की मुस्कुराहट बन के, क्योंकि बहुत बार रोना आता है चीज़ों को लेके, तकलीफ़ों को देख के, बच्चों की, खालिद की। पर हम नहीं रो सकते, क्योंकि अगर वो रो के निकाल देंगे ना, तो जो अंदर से हिम्मत मिलती है ना खुद के साथ में फ़ाइट करने की, लोगों के साथ में, जो समाज है, जो जिस तरीके से हम लोगों को एक साइड में ला के खड़ा कर दिया है। UAPA एक एक्ट एक इंसान पे नहीं लगाया जाता, ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरे परिवार पे लगा दिया जाता है। तो उसी चीज़ों को ना हम लोग हैंडल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चाहे आप कितने भी सारे सपोर्टर्स हैं, बट कहीं ना कहीं आप एक दूसरी वाली जो साइड है उसको आप नकार नहीं सकते। आपने जो मीडिया में देखा होगा, मीडिया ने बहुत ज़्यादा खालिद और इन सभी लोगों के लिए एक अलग ही इमेज बना के रख दी है, देशद्रोही, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या नाम दिए इन लोगों को। तो एक वो वाली इमेज भी है, तो हमें उस चीज़ से भी फाइट करनी है।